چاہے جیسا بھی ہے، لوڑی ہے، لنگڑی ہے، لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے، اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے، ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں۔ تو آج میں پارلیمنٹ آیا، یہاں پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں، اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ دوسرا، جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی، چونکہ اس کے خد و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے، لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے، جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو، ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ سر بنیادی طور پر یہ بتا دیں سر، پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، یہ جنید اکبر صاحب اور یہ 4 لوگ گواہ ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا سی ایم تب اس کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ کے لوگ انتہائی بے سہارا تھے، لاوارث تھے، گلیوں اور گردشوں میں گھوم رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، چھپنے کے لیے پھر رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتاریاں کی جا رہی تھی، ہم صبح نکلے تھے یہاں سے۔ اس بار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سین تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ کے لوگ چھپتے ہوئے پھر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارے ایم این ایس کی کمزوری نہیں ہے، ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی، یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے ایم این ایس پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے، تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے، آج ایک کا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر آئے گا، اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے، لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے۔ پشاور گروپ سے آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی جب آپ وزیراعلیٰ منتخب ہو رہے تھے، ڈی جے اسپیار صاحب نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی۔ تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں، جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کیا بیان دیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے اور مزید ایکسٹینشن ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے سہیل خان، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر فوزیہ پبلک ٹی وی، یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے، کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے اب آگے آپ مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں، احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ جنگ سے اور ہر قسم کے پریشر سے بڑا متاثر ہے، کل پاکستان کے اور افغانستان کے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ بطور وزیر اعلیٰ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جب پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا تو میں نے اس کو خوش آئند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا۔ خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے، ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی
2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मज़ीद बढ़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ के कबायली मशरान हैं, उनको एतमाद में उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। लिखा कि एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है कि सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को ख़त्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या होगी? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली ज़म नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली ज़म करें वफाकी हुकूमत, तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज़्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहें, सूबों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उनकी कदर करनी चाहिए। जी शुक्रिया। चाहे जैसा भी है, लूड़ी है, लंगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है और एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं और कल चूँकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, चूँकि उसके खुदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए। लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मज़ीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सर बुनियादी तौर पर ये बता दें सर, पार्लियामेंट में जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, ये जुनेद अकबर साहब और ये 4 लोग गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त आपका सीएम तब उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपके लोग ना इंतहाई बेसहारा थे, लावारिस थे, गलियों और गर्दिशों में घूम रहे थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, छुपने के लिए फिर रहे थे, इनको उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां की जा रही थी। हम सुबह निकले थे यहाँ से। इस बार आपके होते हुए कोई ऐसा सीन तो पार्लियामेंट में नहीं होगा कि आपके लोग छुपते हुए फिर रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी ये नेशनल असम्बली या ये पार्लियामेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे एमएनएस पर यहाँ इसकी हदूद में हाथ डाला जा रहा था और हम बेबसी के साथ उसका जो है उसको देख रहे थे। तो ये जो है हमारे एमएनएस की कमज़ोरी नहीं है, हमारे उस वक्त के वज़ीर आला की कमज़ोरी नहीं थी, यहाँ के स्पीकर की कमज़ोरी थी कि उसकी मौजूदगी में जो है एमएनएस पर हाथ डाला गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम ला कर अपनी हुकूमत को तोसी दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि मतलब नंबर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं, तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मज़ीद भी बर्दाश्त करेंगे।
लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूँ कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो रहे थे। डीजी इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़ीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अभी जो एक्सटेंशन की बातें हैं, जिस तरह के फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक्सटेंशन की बातें हो रही है, उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी, हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई है। तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अज़ाला करना चाहिए और मज़ीद एक्सटेंशन मिलने की इजाजत नहीं होती है सोहेल खान, तो क्या करेंगे फिर आप? आज आप जिस तरह सर फौजिया पब्लिक टीवी ये बताइएगा, आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है। क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मज़ामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज की कोई कॉल देने वाले हैं, अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? मुझे ये बताएं कि जमहूरियत में और आइन में एहतजाज आइनी है या गैर आइनी है? आइनी है तो फिर करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, आप जिस सूबे के वज़ीर आला है वो सूबा जंग से और हर किस्म के ऑपरेशन से बड़ा मुतासिर है। कल पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप बतौर वज़ीर आला इस मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, जब पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और ख़दशात का भी इजहार किया। ख़दशात ये थे कि अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास कर जो कबायली अज़ला टच हो रहे हैं उनमें जो है बदअमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मज़ीद बढ़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ के कबायली मशरान हैं, उनको एतमाद में उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। कि एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है कि सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को ख़त्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या है? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज़ भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अज़ला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली ज़म नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली ज़म करें वफाकी हुकूमत, तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज़्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहें, सूबों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए।